मेड सम टास्क ऑन ऑटोमेट, ठीक है ना। हम्म, आप ऑटोमेशन टास्क पे इसको मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज है। हम्म। कोई नहीं सर, वो तब देख लेंगे। वैसे तो अभी हमें काफी टाइम तक जुड़े रहना है उसके बाद हाँ जब हाँ आपने बिल्कुल। जो बताया उसके बाद एआई वाला भी देख लेंगे, AI 100 या जो भी होगा उस टाइम, एक कॉमन हाँ, कोर्स AI, वो देख लेंगे। कोपायलट इंपॉर्टेंट होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर, है ना। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। सो हाँ जी। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर एक्टिव यूजर्स प्रॉपर्टी। जब भी हम अपने एक्टिव यूजर को ओपन करते हैं तो वी आर एबल टू सी द ऑप्शन ऑफ मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और हम्म, अनफॉर्चुनेटली जब आप एमएफए की बात करते हो तो डेफिनेटली एमएफए विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ Microsoft Intra Admin Center. So over a Microsoft Intra Admin Center, we are able to perform lots of tasks related to the users multi-factor authentication. अभी हम हम्म, नॉर्मल स्टैंडर्ड एमएफए की बात कर रहे हैं, बट लेटर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पासवर्ड लेस and trust MFA for trusted IP address. These options are available basically on conditional access policy. वो सारे options आपको conditional access की policy में देखने को मिलेंगे. हाँ जी। I'm trying to open our users properties again, telnet users properties. We are still on the page of our account, जिसमें से हमने लगभग सारे options discuss कर चुके हैं. And let's move to the device. So, what do you think about the device? What is use of this device? सर, डिवाइसेस में क्या होता है ना, हम जो कंपनी के डिवाइसेस हैं या इंट्यून मैनेज डिवाइसेस हैं वो Hmm. रजिस्टर कर सकते हैं। या जैसे दो चीज होती है, एक डोमेन जॉइन और एक होता है एंट्रा जॉइन। डोमेन जॉइन मतलब वो पुरानी आप सर्वर वाली मशीन्स जिसमें On आप premise. ऑन प्रीमाइसेस यूज कर रहे हो। और Okay. एंट्रा जॉइन जो आपने एंट्रा के थ्रू ज्वाइन करी है, मतलब क्लाउड के थ्रू ज्वाइन करी है। तो दो मशीनें होती है। फिर इंट्यून ज्वाइन होती है, अगर इंट्यून यूज कर लिया ऑर्गेनाइजेशन तो वो इंट्यून ज्वाइन है। ठीक है, means in case of users properties, if we talk about the device management, so we can manage it by using two different method, क्योंकि ये cloud का part है। on premises को यहाँ पे involve नहीं करेंगे, we are not going to involve the on premises. So Microsoft 365 admin center पे हैं हम लोग अभी, and we are trying to understand the options which are available in the users properties. active user की properties में हमने अभी telnet user को access किया, जी। teachmecloud.in, and you know that in the properties of this particular user we are able to find the option of devices. Okay, under the device it is divided in two different part. One is ms intra joined, ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है ms intra registered, ठीक है, दिस यस। इज द एक्चुअल ऑप्शन। MS intra joined and MS intra registered. These two options are available. और आपकी डिवाइस जब इनरोल होगी पोर्टल पे दिखेगी तो या तो ये joined में दिखेगी या तो registered में दिखेगी. Is that correct? For दैट्स more गुड। information about the devices, you should open the Microsoft Intra Admin Center and go to the properties of devices. Apart from using the user's properties, please go back to the page of Microsoft Intra Domain Services, select devices. It will डिवाइसेस। help you यस। to understand the number of devices. No matter the devices that you added with the help of intra joined or intra registered, both types of devices you are easily able to find. So in my case, as per my tenant, because this tenant I'm using from long time, like from past 3.5 years. So I did lots of practice for Intune, lots of practice for Microsoft 365 services. So total number of devices we are able to find up to 40. And let's start to segregate the type of devices. यहाँ पे हम segregation के लिए इस पेज को ओपन कर देते हैं, ठीक है। And here we are able to see Microsoft Intra Hybrid Join, Microsoft Intra Joined, and see Microsoft Intra Registered. यस। So we should clear about the meaning of these three different options: Microsoft Intra Hybrid Join, Microsoft Intra Joined, and Microsoft Intra Registered. ये तीन कैटेगरी हैं अपने पास जी। डिवाइस को ऐड करने के लिए. So I wanted to add one more point because this is really important because we are going to handle the real time infrastructure. तो उस टाइम पे कंफ्यूजन ना हो कि हमारे पास रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो हम कंफ्यूज हो जाए क्या होगा इसका मतलब. So Microsoft Intra joined and Microsoft Intra hybrid यस। join, ठीक है, hybrid join. तो we should clear about the gap और लास्ट में है अपने पास Microsoft Intra registered.
Any input from your side? What do you think about the meaning of these three different options with example? सर एंट्रा ज्वाइन में जो क्लाउड के थ्रू मशीन ज्वाइन करेगी है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में ऑप्शन होता है पॉलिसीज तभी अप्लाई होंगी अगर वो डोमेन ज्वाइन हो, अगर हम डोमेन ज्वाइन की बात करें। तो अगर एंट्रा ज्वाइन नहीं होगी तो फिर जो पॉलिसीज हमने इसके लिए मशीन के लिए लगाई है वो काम नहीं करेंगी। इसी तरीके से जो हाइब्रिड है उसमें ये क्या कहते हैं एडी कनेक्ट डला हुआ होगा, तो वो दोनों होगी। आपकी हाइब्रिड ज्वाइन दिखाएगा वो। और ये एंट्रा रजिस्टर्ड वाले का मेरे को याद नहीं आ रहा। Okay, great. So you mean to say, what about policy? What types of policy you're talking about कि policy apply होगी? कौन सी policy की हम बात कर रहे हैं basically? अगर मैं डोमेन ज्वाइन बोलूँ तो डोमेन ज्वाइन तो बिल्कुल ही अलग हो गया, वो तो इसके टॉपिक से नहीं ही नहीं, बाहर हो वो गया। लोग वो हम ऑन प्रोमाइसिस का है तो उसको हम यहाँ पे क्लाउड में हाँ नहीं जी, इन्वॉल्व हाँ जी, करेंगे, हाँ। है ना, वो तो जैसे सेपरेट हो जाएगा फिर। हाँ, ऑन प्रोमाइसिस के अंदर हम पॉलिसीज लगाते थे कि ये कंट्रोल पैनल ना दिखे, ये वो XYZ जो हम ADFS से लगाते थे, तो वो पॉलिसी अप्लाई होती थी। अब इसके अंदर क्या होता है, एंट्रा के अंदर भी डिवाइस रजिस्टर होगा, तो अगर इंट्यून के जरिए हम डिवाइस वाइपिंग, डिवाइस की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज कंट्रोल कर सकते हैं पुश करने के लिए। जैसे अगर हमें अपडेट्स वगैरह पुश करनी हो तो वो उसके थ्रू। इसी तरीके ओके, से एंट्रा कूल, एंट्रा ज्वाइन में भी अगर हमें पुश करना है कुछ तो वो अलाउ कर देता है। ग्रेट। ओके ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइंट है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा हाइब्रिड ज्वाइन है, और लास्ट ऑप्शन अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा रजिस्टर्ड है। रजिस्टर। तीनों की मीनिंग है आपके डिवाइस को क्लाउड के साथ कनेक्ट करना इनडायरेक्टली। इज दैट करेक्ट? तीनों की मीनिंग यही दैट्स है राइट। कि वी हाँ आर जी। एबल टू फाइंड, लाइक वी एस्टैब्लिश वन ऑन प्रोमाइसेस लैपटॉप अपना हम यूज कर रहे हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, एंड वी डिसाइडेड टू रजिस्टर, क्योंकि इसके बिना हम कंपनी में किसी भी न्यू ज्वाइनर को या नया कोई बंदा आता है तो उसको हम उसकी डिवाइस को पहले हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, फिर हैंड ओवर करेंगे कि भाई आपकी डिवाइस रेडी हो गई एंड नाउ यू कैन गो विद दैट, राइट? So राइट। the concept of Microsoft Intra joined is related to, definitely this is the part of hybrid. Let's take an example. This is our Microsoft 365 portal. ये अपने पास क्या है? 365 portal है, ठीक है? And बिल्कुल सर। definitely with the help of same root account, we are able to access our Microsoft Intune portal as well. अब यहाँ पे आपके पास BYOD है। BYOD का मतलब होता है Bring Your ब्रिंग योर On ओन डिवाइस। On यस सर। Devices, जिसमें वीवीआईपी यूजर हो गए, सीटीओ हो गया, या हम्म। सीईओ हो गया, या मैनेजर हो गया, या फिर लाइक डायरेक्टर लेवल के डिवाइसेस जो हैं वो हाँ जी। इंडिविजुअल, राइट, उन इंडिविजुअल मशीन को जब हम इनरोल करने का काम करते हैं, द मशीन्स आर अवेलेबल इन वर्क ग्रुप। ठीक है ना, ये मशीनें किसमें है? वर्क ग्रुप के केस में। वर्क ग्रुप में। हर एक मशीन का अपना डेडिकेटेड नेम है, कंप्यूटर का एक नेम होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज HRPC, right? This is test PC, ठीक है? This one is ABCPC, ठीक है? ये हमारे कंप्यूटर का नेम है। एंड द ऑल मशीन्स आर सेल्फ ऑनर्ड। ये सारे कंप्यूटर क्या है? खुद में ऑनर है। वर्क ग्रुप का मतलब है कि दे आर ऑल ऑनर, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल बाय एनी अनदर कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर के थ्रू इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। So, if you are going to bring this device manually to the Microsoft Intra Admin Center, and you are able to see the name of your computer HRPC over portal 365 portal पे, अगर आपने ये डिवाइस को AD Connect Microsoft Intra Connect के थ्रू, which is Intra Joint, ठीक है, नॉट कनेक्ट, अगर आप इसको इंट्रा ज्वाइन के थ्रू किसी यूजर की हेल्प से इस डिवाइस को क्लाउड तक ले जा रहे हो individual, so that is considered as a Microsoft Intra joint device. This is considered as Microsoft Intra joint device. Is that clear? क्लियर। But unfortunately production environment में you guys you are aware about कि AD लगाना जरूरी है, mandatory है, this is the backbone for our environment. So इसी part को थोड़ा सा हम change कर दे रहे हैं. We established our one domain with name of cloud.com, and we established multiple client computers. We have a n number of client machines are connected, and you know that the all machines we have already converted from work group to the domain, right? These machines राइट। we successfully converted from work group to domain. हमने इसको क्या किया है? वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर रखा है। तो जो भी मशीन है, यू नो दैट इस cloud.com के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्ट्स में यू आर एबल टू फाइंड यूजर्स, यू आर एबल टू सी ग्रुप्स, ग्रुप्स। एंड हम यहाँ पे कंप्यूटर्स का ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है? दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल।
अब ये जो कंप्यूटर का फोल्डर होगा ADDS में, वो इन मशीन की डिटेल को कंटेन करके रखेगा। HRPC हो गया, अपना टेस्ट PC हो गया, या ABC PC हो गया, ठीक है, या XYZ PC हो गया। सो दीज ऑल आर द नेम ऑफ कंप्यूटर्स जो हमने वर्क ग्रुप से इनको क्या किया है, मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर बना रखा है। इज दैट क्लियर प्लीज? यस सर। सो अगर आपने इस मशीन को यूजर का पार्ट, लाइक यू हैव ऑलरेडी चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंप्यूटर एंड मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, तो ये जो कंप्यूटर फोल्डर है ना, इन कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखेगा, है ना, ये हाँ सारे जी। पीसी की डिटेल को कंटेन करके रखेगा, दैट यू कैन इजीली अप्लाई द पॉलिसी टू द यूजर, या फिर हम्म, दैट यू कैन अप्लाई द पॉलिसी टू द कंप्यूटर। हम्म, हम अपनी पॉलिसीज को कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं और यूजर्स पे भी लगा सकते हैं। हाँ जी। अगर आपने यूजर पे लगाया तो यूजर विल बी लाइक द ब्रिंग देयर पॉलिसी विद मल्टीपल कंप्यूटर्स। मैंने एबीसी पे पहले एचआर पे लॉगिन किया, पॉलिसी में कंट्रोल पैनल ब्लॉक की थी, एचआरपीसी पे कंट्रोल पैनल दिखना बंद हुआ। मैंने एक्स वाई जी हम्म, पीसी पे सेम यूजर लॉगिन किया, इस पे भी कंट्रोल पैनल हम्म। दिखना बंद हो गया। गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ जी, मैं समझ गया, क्योंकि वो है ना, यूजर किसी भी पीसी पे लॉगिन कर सकता है ना एनवायरनमेंट के अंदर, उसको एनवायरमेंट। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो उसकी पॉलिसी में फ्लो हो जाती है उसके साइन इन तो से। तो पॉलिसी उसके साथ मूव करेगी, उस हाँ यूजर जी। के साथ पॉलिसी मूव करेगी जहाँ पे भी। एंड व्हाट अबाउट द कंप्यूटर पॉलिसी? कंप्यूटर पॉलिसी जो हमने लगा दी वो तो मल्टीपल, जो भी जिस कंप्यूटर पे लगाई है उस पर रहेगी ही रहेगी, पर ओवरराइट भी हो जाती है अगर यूजर लॉग इन करेगा तो। नो, उसमें डिफरेंस एक्चुअल, भी। हाँ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ अप्लाइंग पॉलिसी टू द कंप्यूटर। एक्चुअल पॉलिसी अप्लाइंग टू द कंप्यूटर मीन्स वो जो कंप्यूटर का आप पूरा कंट्रोल कर रहे हो, क्या ऑप्शंस के लिए आपने एक्सेस देने हैं उसको। एंड द पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट मशीन ओनली। वो दूसरे यस। मशीन पे, उस दूसरे मशीन मशीन पे पे। कोई भी बंदा लॉग इन करेगा, XYZ जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हमने बना रखे हैं, कोई भी बंदा लॉग इन करेगा, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पॉलिसी हार्डवेयर पे लगा रखी है। इज दैट करेक्ट? राइट राइट the राइट सर, pol- वो। the policy that you हाँ। applied to the container, to the computer, तो आप यूजर हम्म, को कितने भी बदल लो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ वही, वो प्रेसिडेंस आ जाती है ना, मैं भूल गया, याद आ गया हाँ, मेरे को। ठीक है। सो नाउ, अब यहाँ पे, लाइक एज अ, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा जॉइंट। इट इज एप्लीकेबल फॉर बल्क डिवाइसेस। हम्म, ये हमारे बल्क डिवाइसेस के लिए। यू नो दैट यहाँ पे HRPC, टेस्ट पीसी, एबीसी पीसी और XYZ पीसी है। अगर आप इन मशीनों को, अगर आप इन डिवाइसेस को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट के टूल के जरिए, we have one tool, the name of tool is Microsoft Intraconnect. If you इंट्रा are going कनेक्ट। to bring, क्योंकि ये इंट्राकनेक्ट दो काम करता है, दो क्या तीन काम करता है। आपके पास जो यूजर्स हैं, number of users that you establish, right, whatever users that you establish, you are easily able to sync these users to Microsoft Intra Admin Center. Is that correct? दैट्स राइट। Apart from the users, you are also able to sync the devices, राइट। user, group और कंप्यूटर। डिवाइसेस। इन तीनों को सिंक्राइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंट्राकनेक्ट की होती है। तो जो मशीनें आपकी इंट्राकनेक्ट से आई हैं पोर्टल के ऊपर, these machines are always considered as a hybrid joint. यस सर। It means that the machine that we are able to see worker PC something करके, है ना, ये इंट्रा हाँ जॉइंट जी। हाइब्रिड है। डेस्कटॉप KP something, this is इंट्रा जॉइंट। इट मींस दैट these हम्म, machines are part of local domain controller, और फिर हमने डोमेन को क्या कर दिया है, सिंक्राइज कर लिया है पोर्टल के ऊपर। This is हाँ the जी। actual gap. This is the actual gap between both. Is that clear, please? यस सर। Great. Can we proceed for next? यस सर। Now, the another important point we are going to talk, the last one. एक है रजिस्टर्ड का। तो रजिस्टर्ड क्या है? जैसे हिमांशु पीसी है, दिस इज द रजिस्टर्ड डिवाइस। अगर आप अपनी डिवाइस को, द ऑन प्रोमाइसेस मशीन दैट यू एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, ये आपका इंट्यून का पोर्टल है, दिस इज आवर इंट्यून पोर्टल। एंड अगर आपने अपने डिवाइस को विंडोज 10 या विंडोज 11, वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू हैव, अगर आप इसको इनरोल करते हो तो आपकी इनरोल डिवाइसेस आर ऑलवेज कंसीडर एज ए रजिस्टर्ड। ऑलराइट, ओके।
Got it. Group policy is a part of Intune, not Microsoft 365, not Microsoft Intra Admin Center. ना हम इंट्रा एडमिन सेंटर से कोई ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं, ना 365 से कोई पॉलिसी लगा सकते हैं. If you want to apply the policy, you must need to enroll the device to the Intune portal. Intune तो portal, वहां पे हम yes. ग्रुप पॉलिसीज वगैरह मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. हाँ जी, हाँ जी. इज दैट ओके प्लीज? Yes sir, clear. ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम यूजर की बात करें, यहाँ पे अगर हम यूजर की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो लेट मी ओपन द पेज ऑफ यूजर प्रॉपर्टीज टेलनेट. So to enroll our devices, you always go with the specific user. आपको अगर कोई डिवाइस को कनेक्ट भी करना है ना, या ज्वाइन भी कराना है, या एनरोल करना है, इन बोथ द केसेस मैंडेटरी कि आपको एक यूजर और एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. Okay. ओके. सो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी जब आप अपने डिवाइस को इंट्यून पे होटल पे ले जाना चाहते हो. ठीक है. अगर आप हाँ अपने जी. डिवाइस को सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हो, सिर्फ यू वांट टू ऐड विद माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल या इंट्रा एडमिन सेंटर से अगर आप ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में अगर आपके यूजर के पास लाइसेंस नहीं है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इट विल नॉट इम्पैक्ट. ठीक है. आप कोई भी उस मशीन को हम इजिली क्या कर सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं, मीन्स कनेक्ट करा सकते हैं पोर्टल के ऊपर. अभी कुछ यस सर. सर जहाँ तक मुझे पता है P1 P2 लाइसेंस चाहिए होता है. बिना P1 P2 लाइसेंस के आप कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी और ये कुछ काम नहीं करेंगी. हाँ और एग्जैक्टली. है ना सर. इंट्यून के लिए इंट्यून का लाइसेंस चाहिए आपको यूज इंट्यून के करने के लिए लिए. प्लान 1 प्लान 2, या आपके हाँ, पास अलग अलग जो E3 हो लाइसेंस आते हैं. या हाँ जी. E5 हो. E5 एंटरप्राइज लाइसेंस यूज करना पड़ता है. और ये जो जैसे कि हमने M365 का लाइसेंस ले रखा है, अब वो डिवाइस को ज्वाइन कराना है तो वो जाएगा, नॉर्मल लॉगिन करेगा तो डिवाइस ज्वाइन हो जाएगा उसका. ऐसे ही करेक्ट होता है ना. करेक्ट करेक्ट. इट तो विल हेल्प अस तो टू वो जस्ट एंट्रा इंक्रीज. रजिस्टर दिखाएगा. करेक्ट. अगर हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, P1 P2 या एंटरप्राइज लाइसेंस नहीं है, तो सिर्फ वो रजिस्टर दिखाएगा. अगर हमारे पास P1 P2 है तो फिर वो जाके एंट्रा ज्वाइन हो जाएगा. और अगर सॉरी इंट्यून लाइसेंस है तो इंट्यून ज्वाइन हो जाएगा. इंट्यून में भी तो ऑनबोर्डिंग करानी पड़ती है. ऐसे थोड़ी तो लिंक लिंक भेजना पड़ता है मेरे ख्याल से, शायद या कुछ मैं भूल गया अभी. करेक्ट 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 है ना सर, ऐसे ही होता है. करेक्ट. सो यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस का क्लियर हो गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 की टीम और इंट्यून की टीम टोटली अलग होती है. ठीक है. बोथ आर हाँ डिफरेंट जी, टू हाँ ईच जी, अदर. है ना. हाँ जी, जो इंट्यून की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर इंटरप्राइज एमएसपी में तो सारा बंदा एक ही काम करता है, एक ही बंदा हाँ जी. जो है रिस्पॉन्सिबल है सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए. बट इंटरप्राइज में आपकी जो चीजें है ना, वो डिवाइडेड रहती हैं. सो इन दिस ठीक है. सिचुएशन, अगर Microsoft 365 एडमिनिस्ट्रेटर को देखना है कि हमारे पास कितनी डिवाइसेस हैं और कौन कौन से यूजर जो है हमारी डिवाइसेस को कैरी कर रखा है और उसको उसकी सर्विसेज को मैनेज कर रहा है, तो उस जी. सिचुएशन में 365 को Intune एडमिनिस्ट्रेटर से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है. और ये ऑप्शन अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड कर दिया किया है, पहले नहीं था. चलो लाइसेंसिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं. दिस इज द पैनल वेयर वी कैन सी द ऑप्शन रिलेटेड टू द लाइसेंस एंड एप्लीकेशन. एंड हियर वी आर एबल टू सी द नंबर ऑफ लाइसेंसेस दैट यू हैव. तो E5 लाइसेंस है मेरे पास, मैंने अप्लाई कर रखा है. हाँ कोपायलट जी. स्टूडियो का लाइसेंस है और माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट का लाइसेंस अवेलेबल है. So these all are the complement that provided by Microsoft, and also you are able to see कि E5 का जो लाइसेंस होता है ना, इसमें 87 प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें. This is the list of our all applications that are associated with E5 license. ये जो नंबर है ये डिफरेंट हो सकते हैं as per the type of license that you are going to assign. Is that correct? अगर यस. आपके पास यस. E3 लाइसेंस है तो हो सकता है कि आपको यू विल गेट अ काइंड ऑफ डिफरेंट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो अलग हो सकती है. अगर आपके हाँ पास जी. E7 है तो E7 तो सबसे टॉप पे माना जाता है, राइट. सो यस. E7 इज बेसिकली द न्यू लाइसेंस दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आपको कोई दूसरा लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है. The E5 license contain all the features: 365 services, Intune services, Windows Cloud PC services,
And Dynamic 365 services, all the services package are available. E3 license, oh sorry, P2 license and Intune license also involved. But हाँ, cost उसकी 11,000 per month है, per user per month. हाँ All जी, right. So that's why we need to take care about it. Are we good? यस सर. Okay. So next, another important part, mail. This is important. And under the mail properties, multiple tasks that we are able to perform. Like first, you can identify the space according to the license that you given to your user account. You are able to see the space of your OneDrive, the space of our mailbox. 100 GB का स्पेस हमें मिला है इस वन ड्राइव इस पर्टिकुलर लाइसेंस के जरिए. E5 लाइसेंस में 100 GB, E3 लाइसेंस में 50 GB, बिजनेस बेसिक या बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आपको 50 GB का लाइसेंस स्पेस मिलता है. इज दैट Per करेक्ट? user. Yes. Okay. है ना? एंड Per हियर वी कैन user. सी पर यूजर पर मेल बॉक्स, पर यूजर पर मेल बॉक्स के केस में. एंड हियर वी कैन सी द मेल बॉक्स परमिशंस. सो एनी इनपुट फ्रॉम मेल बॉक्स परमिशन? सर मेल बॉक्स का इतना आइडिया नहीं, पर हाँ मैंने स्पेस वगैरह नॉर्मल आपका ये जो ये आपकी वर्चुअल मशीन होती है इसमें स्पेस बढ़ा है, उसकी रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है तो फिर आपका स्पेस बढ़ता है ना. स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस की रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है तभी आप. वो तो करा पर नहीं ये नहीं करा. नहीं नहीं, वो ऑन प्रोमाइसेस के लिए है, ये क्लाउड के लिए है. ऑन प्रोमाइसेस के हाँ जी. एक्सचेंज में हमें लोकल पे हम बोल सकते हैं उनको टू इंक्रीज इट. ठीक है. बट इन केस ऑफ आवर मेलिंग सर्विसेज, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, यहाँ पे हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. OST, PST file, all the services managed by the provider Microsoft 365 board, है ना? जो Microsoft हाँ जी. 365 है, they are responsible for the storage. और वो storage को divide करते हैं as per the type of license that you are going to provide, that you Yes. provided, that you're giving to your users, है ना? जो भी आपने license assign किया है, उस license के basis पे ये like as a change भी हो सकता है. Pardon, please. Okay. So now talk about the permissions. So under the mailbox permissions, we are able to see read and manage permission, send as permission, send on behalf of permission. है ना? तो जो इनकी मीनिंग है, which is as per the name suggest, अभी हम हैं यूजर्स की प्रॉपर्टीज में. वी आर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर टेलनेट यूजर. अब हम चाहते हैं कि टेलनेट इज ऑन लीव फॉर नेक्स्ट 5 days या नेक्स्ट 1 week के लिए लीव पे जा रहा है, और ही डिसाइडेड कि मेरे जो कन्वर्सेशन है, राइट, ऑन माय बेसिस क्लार्क शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क. So I'm going to check the Clark user. Definitely Clark user is also contain the license. I hope कि मैंने इसको license assign कर रखा है. Let me find. Yes, we provided a E5 license. E5 license. And so go to the mailbox and I want to set the send on behalf of permission. So जब आप इसमें permission set करोगे and I want to assign to the Clark. अब Telnet is on leave. Telnet हमारा leave पे है. But he like Telnet was in a very critical project, but उसको immediately emergency में leave लेना पड़ गया. अब ये क्या करेगा? On basis of Telnet, Clark will take care of the client. So what I'm going to do, I'm going to open Clark. And try to send an email with the help of Clark user on basis of Telnet. मतलब email भेजेगा Clark, लेकिन किसके बेस पे? टेलनेट के बेस पे. टेलनेट की समझ गया मैंने. वो डेलीगेशन दे दिया उसने, आप मेरी मेल से Delegation. ईमेल भेज सकते हैं. So this is our root account. This is support at teachmecloud.in, and I want to send an email to support user, support at teachmecloud.in, और यहाँ पे test permission. This is test email for permission. ठीक है. So
बट वी डोंट वांट टू सेंड टू द सपोर्ट यूजर विद द हेल्प ऑफ क्लार्क, क्योंकि अभी तो आपकी प्रॉपर्टीज क्लार्क है ना, अभी आपका यूजर क्लार्क है. So for हाँ this जी particular option, you need to click on option. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा which is related to option and yeah, show from. So जब आपका show from option activate करोगे ना, तो अभी ये क्लार्क के साथ जा रहा है, but we are going to add it for telnet. चलिए। ठीक है. अब ये केवल उसी यूजर को हाईलाइट करेगा, द यूजर्स दैट ऑथराइज क्लार्क. गॉट इट. द यूजर समझ गया। दैट यू ऑथराइज. अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज में इस टेलनेट को ऐड नहीं किया होता, सो सॉरी, अगर टेलनेट ने क्लार्क को ऐड नहीं किया होता तो शायद वी आर नॉट एबल टू तो डू इट. नहीं भेज पाता, वही मैं उल्टा बोल दिया आपने। हाँ, कोई नहीं। सो जस्ट नीड टू सेंड एंड लेट्स वेट. ठीक है. आ अब गया। हमें ईमेल रिसीव हुई, बट तो ऊपर लिखा भी है रिसीव ना, क्लार्क ऑन बिहाफ ऑफ टेलनेट। एग्जैक्टली. तो इसमें ये हाईलाइट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि the email that you received through the telnet but basis on the Clark user. This is the permission अगर that you need to manage. हाँ, Yeah. और अगर मेल बॉक्स ये ऐड कर लेते तो फिर वो उसी से जाते। ऐड मेल बॉक्स का ऑप्शन होता है ना, हाँ, अगर हम एड मेल बॉक्स कर लेते तो उसी तो नेम से तो दिखाई पड़ता, ऑनर के हाँ, नेम से. तो जो जैसे अभी हमने डेलीगेशन दी तो उसमें मेल बॉक्स ऐड कर पाएंगे। इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके सर। Here we are able to see two different options. यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. ठीक है. तो हाँ जी एक बार हम ओपन करते हैं इस प्रॉपर्टीज को, मेल में चलते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं. हम इसका इस्तेमाल किए. अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं ना, सेंड एज परमिशन, तो ये जो ऑन हम्म। बिहाफ ऑफ आ रहा है ना, वो ना आता. समझ गया सर। आपको सिर्फ उसी बंदे का नाम दिखाई पड़ता है जिसने सेंड किया है. राइट. मीन्स राइट। क्लार्क का ही नेम दिखाई पड़ता है या टेलनेट का नेम दिखाई पड़ता है. बेसिस कोई सा भी हो, मीडिएटर कोई भी है, बट आपने ये जो ऑन बेसिस और ऑन बिहाफ वाला ऑप्शन है, इसको आपने हटा करके डायरेक्टली असाइन कर दिया. दैट यूजर विल गेट एन एक्सेस ऑफ ईमेल थ्रू द सेम परमिशन दैट यू अप्लाइड. जिस यूजर को परमिट किया है ना, सिर्फ वही यूजर ही आपको एक्सेस प्रोवाइड कर पाएगा. क्लियर। ठीक है. सो दिस इज द परमिशन. एक ऑप्शन और दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, रीड एंड मैनेज परमिशन. अगर आपको फुल कंट्रोल ही देना है किसी यूजर को, तो दैट टाइम यू कैन गो विद दिस ऑप्शन. ठीक है. उस केस में आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आर बी गुड जो विद वो दिस? ग्रुप, यस सर, ग्रुप मेल बॉक्स बनाते हैं उसमें यही करता है। एग्जैक्टली. जब आप ग्रुप की बात करेंगे तो उस केस में हम सेम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे. And apart from this mail application, so here we are able to see the multiple mail application. So I'm going to check. This is the list. और डेफिनेटली जहाँ पे क्लाइंट कह रहा है कि मुझे कुछ कस्टमाइज तरीके से मेल सर्विसेज को इस्तेमाल करना है, कस्टम तरीके से मेल सर्विसेज को इस्तेमाल करना है, तो यू आर गोइंग टू डिसाइड कि हाउ मेनी protocols or how many services do you want to authorize for your user account. Outlook on web, Outlook on desktop, right? And Outlook on Exchange services, IMAP, POP3 और ऑथेंटिकेटेड SMTP. अगर आप इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये सारे एप्लीकेबल होते हैं, बट अगर आप इनको सैग्रीगेट करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट. जैसे कंपनी ने डिसाइड कर रखा है, डू नॉट अलाउ देम टू एक्सेस डेस्कटॉप या डू नॉट अलाउ देम टू एक्सेस आउटलुक ओवर अ वेब. ठीक है. तो उसमें हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे उस पर्टिकुलर यूजर को डिवाइस पे या वेब पे जहाँ पे भी आपने चीजों को अनचेक किया है, द यूजर विल नॉट बी एबल टू एक्सेस. इज दैट समझ फाइन गया। प्लीज? यस सर। ठीक है. सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड. अगला ऑप्शन है गैल, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट. सो बाय डिफॉल्ट हमारे सारे यूजर्स गैल में एक्टिवेटेड रहते हैं. मींस वी आर इजीली एबल टू see the GAL users in the GAL. What is GAL? ग्लोबल एक्सेस लिस्ट, एड्रेस लिस्ट सॉरी। Okay, what is use of global address list? सर ये एक तरीके से आपकी डायरेक्टरी होती है जिसमें कि आपके जो यूजर्स है ना सब ऐड होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है उनकी, एट्रीब्यूट्स वगैरह भी होते हैं। और ये है ना क्या कहते हैं,
सिंक होती है मेरे ख्याल से सबके साथ। जैसे आप किसी का नाम सर्च करते हैं ना कंट्रोल के करके, तो वो तभी सर्च होता है अगर वो ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में एडेड हो। अगर नहीं होगा तो फिर आप सर्च नहीं कर पाओगे। करेक्ट। आपने गैल इज अ टाइप हाँ। ऑफ डिक्शनरी। गैल इज अ टाइप हाँ ऑफ जी। टेलीफोन डायरेक्टरी, है ना, जहाँ पे सारी जी हाँ नेम, जी। सभी की नेम की इंफॉर्मेशन रहती है। अगर हाँ मैं जी। आउटलुक पे जाता हूँ और मुझे क्लार्क यूजर की ईमेल आईडी के बारे में नहीं पता है, राइट, सो मैं राइट। हिंट दूंगा, मैं केवल टाइप करूंगा क्लार्क, ये मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि हाँ जी। the keyword that you are trying to use, right? The keyword that you are trying to use, with the help of these keyword, you are easily these all are the names. These all are the email addresses that are available in the list of our GAL. So जी अगर आपको कुछ VVIP यूजर्स हैं जो कि नहीं चाहते कि उनकी ईमेल आईडी को डिस्क्लोज किया जाए, आसानी से बंदे उनकी ईमेल आईडी को जान पाए, ठीक है, जी तो जी। इन दिस सिचुएशन दे ऑलवेज प्रोसीड विद विच ऑप्शन? वो हमने कल पढ़ा था एलियस। हाँ, एलियस, नहीं नहीं नहीं, एलियस तो है ही है, एलियस तो है ही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको गैल की कैटेगरी में रखते ही नहीं। अच्छा, गैल में से हटा देते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू पुट देम इन गैल। हम उनको गैल की प्रॉपर्टीज में नहीं रखें। ओके। अभी ओके? यस सर। जो दोनों ऑप्शन होते हैं, चाहे एलियस चाहे अच्छा एलियस तो दूसरे उसमें करेंगे, पर यहाँ से हटाना है तो हम ग्लोबल एक्सेस लिस्ट में से ही हटा दें। एग्जैक्टली। Okay, cool. Now, going back, and here we can see the option of इसमें केवल ऑन और ऑफ है, मतलब वीवीआईपी यूजर है तो उसको गैल से ऑफ कर दो, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन जो है इजिली एम्प्लॉयज ना फाइंड कर पाए, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस आर एन इंफॉर्मेशन अबाउट यूज आवर वीवीआईपी यूजर्स। तो हम तो ऐसा सर कर वो क्या, सकते हैं। तो ये मैनेज में जाके करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट, यहीं पे है, प्लस यस है ना, इसको नो कर दो, अनचेक कर दो, दैट्स इट। हम्म। अब ये जो टेलनेट यूजर है ना, इसकी ईमेल एड्रेस को आसानी से सर्च नहीं किया जा सकता। यूजर नीड टू प्रोवाइड द कंप्लीट ईमेल आईडी मैनुअली। उसको कंप्लीट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर इस यूजर पे हमें ईमेल सेंड करनी है तो। इज दैट ओके प्लीज? हेलो? यस सर, इट्स क्लियर। है ना, तो मेरे पास ना एक्चुअली दो यूजर हैं, एक ऑन प्रोमाइसिस से टेलनेट आ रहा है और एक क्लाउड से है। तो मैं पहले दूसरे वाले यूजर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उसकी लिस्ट गैल में है, और जो अभी हमारे पास यूजर है जो हमने डायरेक्टली पोर्टल से क्रिएट किया उसकी लिस्ट गैल में नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सर्च होने में, बट लेट मी चेक आइडेंटिफाई कि ठीक है, ये एक्सटर्नल दिखा रहा है, आपका इंटरनल आईडी नहीं दिखाई बोल रहा है। एक्सटर्नल इन द सेंस दैट कमिंग फ्रॉम ऑन प्रोमाइसिस, क्योंकि वो था ऑन प्रोमाइसिस से ना, तो इस वजह से ये दिखा जी रहा जी, है। समझ अदरवाइज गया। ये आपको पूरी ईमेल आईडी बोलता कि यू शुड प्रोवाइड द कंप्लीट आईडी डिटेल, देन आई एम गोइंग टू सेंड एन ईमेल टू दैट पर्टिकुलर यूजर। ऑलराइट प्लीज। नेक्स्ट, ईमेल फॉरवर्डिंग। तो एज पर द नेम सजेस्ट, हम नहीं चाहते कि हमारी जो ईमेल है या किसी भी पर्टिकुलर यूजर को इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी ईमेल को अपने पास ले आना है, क्योंकि यूजर हमारा लीव पे है फॉर लॉन्ग टाइम, एंड उसके जो क्लाइंट है उसकी क्लाइंट की ईमेल्स आ रही हैं। तो हम यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाकर के ये वाली सेटिंग कर सकते हैं, दैट वी कैन इजिली गेट एन एक्सेस ऑफ ऑल द ईमेल्स, ठीक है। उसके यूजर जी की सारी ईमेल्स को हम किसी पर्टिकुलर ईमेल के पास बाइंड कर सकते हैं, जो भी ईमेल क्लाइंट भेजेगा वो ईमेल हमें अपने ईमेल एड्रेस पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट करेक्ट? समझ गया। करेक्ट। सो ईमेल फॉरवर्डिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, दैट एवरीवन नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल फॉरवर्डिंग, और maybe you can also apply the policy of email forwarding with the feature of what, with the feature of permission। आपको ये दोनों लगानी पड़ेगी कि उसके पास जो ईमेल आ रही है उसको भी हमें एक्सेस करना है और उसके बेसिस पे हमें ईमेल ट्रांसफर भी करनी है। तो इन दोनों को ज्यादातर साथ में इस्तेमाल किया जाता है इन द रियल इन्वायरमेंट। क्लियर। ये तो यूजर खुद भी सेट कर सकते हैं ईमेल फॉरवर्डिंग को। हाँ, यूजर कैन आल्सो सेट देयर own, and automatic reply, this is the option, and here we can see the multiple options,
यहाँ पे अपने पास हम्म, कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स, एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज, मैनेज लिटिगेशन होल्ड। तो इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज ये सेपरेट, कन्वर्ट यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स, और एक है लिटिगेशन होल्ड। तो इन दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्ट यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स, सिचुएशन, कंडीशन, व्हाई वी नीड टू डू दैट, एनी आइडिया? सर नहीं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था मैंने शेयर मेल बॉक्स में। हम्म इसमें ये तब करते हैं मेरे ख्याल से, जब जैसे हमारे पास जीमेल याहू पे भी हो, और ये क्या कहते हैं एक अकाउंट यहाँ पर भी हो, तो फिर शायद तब करना होता है कुछ। हम्म हम्म, हम्म। मतलब ये एड्रेसेस हमें वहां पे लेके जाने हैं उस वाले मेल बॉक्स पे, दूसरे के, ऐसा कुछ होता है नहीं? नहीं नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसमें। बेसिकली द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग अवर यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स एज पर द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन इसकी एक ही है कि बंदा जो है कंपनी में काफी लॉन्ग टाइम से था, बट नाउ ही हम्म, डिसाइडेड टू मूव। पिछले 5 साल में इस क्लाइंट ने, इस टेलनेट यूजर ने, लाइक ही डिड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे क्लाइंट्स बनाए, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके दिया कंपनी के लिए। इसका मतलब इसके जो मेल बॉक्सेस है ना, वो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो ओके नॉर्मली ओके क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बंदे आते हैं जाते हैं, डेफिनेटली कंपनी है तो अपना बंदा ग्रोथ के लिए मूव करता ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो ऑफ बोर्डिंग की प्रोसेस होती है कंपनी में, कहीं ना कहीं आपका रोल होता है, 365 एडमिन का रोल होता है ऑफ बोर्डिंग में। टीए टीम, एचआर टीम, फाइनेंस टीम, इंटरनल आईटी और 365 इंजीनियर, ये 5 जो डिपार्टमेंट है ना, ये 5 जो बंदे हैं, दे डिसाइड कि हमें किस तरीके से प्रॉपर ऑफ बोर्डिंग करनी है, ताकि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में हम पे कोई बात ना आने पाए कि आपने ये नहीं किया, ये यूजर कंप्लायंस था, आपने जाने कैसे दिया, व्हाटएवर टाइप्स ऑफ इश्यूज। आपको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर एक चीज वेरीफाई करके तभी अकाउंट को क्लोज करना है। गॉट इट? गॉट सो इट। think about a user telnet is working with an organization from past 7 years, ठीक है। एंड ही डिड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ही डिड मल्टीपल क्लाइंट। इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट अभी रन टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। बट ही डिसाइडेड टू मूव ऑर्गेनाइजेशन, और पिछले 7 साल में बंदे ने काफी कन्वर्सेशन किए, मोर देन 25,000 ईमेल्स है उसके मेल बॉक्स में। 25,000 से ज्यादा मेल बॉक्स में ईमेल्स का कन्वर्सेशन हुए, आने जाने दोनों का मिला करके, सेंड रिसीव दोनों को मिला करके। तो डेफिनेटली उन मेल्स में क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, एसओपीज, है ना, डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के सेटअप से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो जब कंपनी से वो बंदा जाएगा, तो नॉर्मली क्या होता है कि मेल बॉक्स को डिसेबल कर दिया जाता है। 30 दिन तक उसके मेल बॉक्स की एक्टिविटी होती है, और अगर उस मेल बॉक्स में कोई ऐसी चीज फाइंड नहीं होती जो कंपनी के रिलेवेंट नहीं है, तो उस मेल बॉक्स को डिलीट कर दिया जाता है परमानेंट के लिए, ठीक है। लेकिन यस। अगर कोई बंदा इन बिटवीन ऑफ प्रोजेक्ट जा रहा है, या फिर वो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैंडल किए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और उसका ई सेट काफी अच्छा है, तो उसके मेल बॉक्स को हम इमीडिएटली कन्वर्ट कर लेंगे शेयर्ड मेल बॉक्स में। हाँ जी हाँ जी। शेयर्ड मेल बॉक्स इज अ कॉमन मेल बॉक्स, ठीक है। शेयर्ड मेल बॉक्स इज टाइप ऑफ कॉमन मेल बॉक्स। अब इस शेयर्ड मेल बॉक्स को आप अपने अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हो अलग अलग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, ठीक है। फॉर चाहे तो वो उसको एग्जाम्पल, टीम टीम को कर दो, चाहे उसके मैनेजर हाँ को कर दो जो एक्सेस करना चाहता है। हाँ, एक बंदे या 3 बंदे किसी के, ये यूजर्स मेल बॉक्स है टेलनेट का। ये क्या है? यूजर्स यूजर नेम। मेल बॉक्स, ठीक है। ये हमारे यूजर का मेल बॉक्स है। अब इस यूजर्स मेल बॉक्स को हमने क्या किया, शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट किया। इसको हमने क्या किया, शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करने का काम किया। अब जब आप शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करोगे ना, आप इस यूजर को मल्टीपल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जैसे क्लार्क हो गया या टाटा हो गया या अनदर यूजर टॉनी हो गया, आप इनको ऑथराइज कर सकते हो, एंड दे आर एबल टू सी द कन्वर्सेशन दैट परफॉर्म्ड बाय टेलनेट। इज दैट राइट। क्लियर? एंड क्लियर सर। शेयर्ड मेल बॉक्स को नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें शेयर्ड मेल बॉक्स को लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है।
आपको इसमें 50 GB का स्पेस कॉम्प्लीमेंट में मिलता है। अगर आपको बढ़ाना है 50 GB से ज्यादा चाहिए तब आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड टू असाइन द लाइसेंस टू दिस पर्टिकुलर यूजर। इज ऑल गुड प्लीज? अंडरस्टूड। यस सर, अंडरस्टूड। क्लियर। सो दिस इज शेयर्ड मेल बॉक्स। अगला है लिटिगेशन होल्ड। वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन लिटिगेशन होल्ड। हम क्या कर सकते हैं, लिटिगेशन होल्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। And next one is related to about litigation hold. ठीक है, so any input? सर ये वही लिटिगेशन से तो मेरे को लीगल मामला समझ में आता है। कोई हो तो उसको होल्ड करना, उसका मेल बॉक्स ब्लॉक करना हो, कुछ इस टाइप से या नहीं? थोड़ा सा सिमिलर है, मिलता जुलता है, बट और थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए, है ना। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं लीगल तो नहीं बोल सकते, इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं, हम्म। है ना। लीगल और इन्वेस्टिगेशन बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच हाँ, अदर, है ना। जैसे किसी का मेल बॉक्स हैक हो गया हो या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो, स्पैम वैम आ गया हो या कुछ इस टाइप से, उस पर लिटिगेशन होल्ड डाल देंगे तो इसलिए इस टाइप के लिए। नहीं 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 नहीं, लिटिगेशन होल्ड जैसे वी नीड टू एक्टिवेट। अपने पास क्लार्क यूजर है, ठीक है, क्लार्क यूजर है, इसका मेल बॉक्स है, एंड क्लार्क यूजर का मेल बॉक्स मल्टीपल मेल बॉक्सेस को कंटेन करके रखा है। द मेल बॉक्सेस आर इनबॉक्स, ठीक है। मेल बॉक्सेस के केस में सेंट आइटम भी आता है आपका, और मेल बॉक्स के केस में आपका जंक फोल्डर भी आता है और आपका स्पैम भी आता है। इज दैट करेक्ट? ये सारे राइट। मेल बॉक्सेस। लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि आई वांट टू सी द कन्वर्सेशन, हमें इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे थोड़ा सा शक है कि ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, और मे बी की सम इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये बैकएंड से लोगों को एंट्री दिला रहा है कंपनी में, है ना। तो ओके। सी, थिंक अबाउट इट। लिटिगेशन होल्ड अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हो, मैं फॉर एग्जांपल क्लार्क इज अ यूजर, क्लार्क ने क्या किया, ईमेल सेंड की, ठीक है, ईमेल सेंड की, यूजर्स को ईमेल सेंड की, और ईमेल में इसने पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी कि ये एचआर की डिटेल है, इतनी सैलरी पैकेज है, इंटरनल जो वैकेंसीज थी उसको शेयर कर दिया, और रेफरेंस दे दिया, बैकएंड से उससे कुछ पैसे वगैरह ले लिए, वट एवर इंफॉर्मेशन दैट लाइक परफॉर्म बाय यूजर। तो जब बंदा अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से किसी से कन्वर्सेशन करेगा तो वो सारी चीजें आपको जेन्युइन लगेगी, ठीक है ना, कि यार ये ऑफिस की मेल आईडी का इस्तेमाल कर रहा है, इट मींस दैट ये बंदा जेन्युइन है और कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये जो कन्वर्सेशन था, ठीक है, ये जो कन्वर्सेशन था, सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद इसने क्या किया, अपने एंड से डिलीट कर दिया, सेंट में जाके डिलीट कर दिया, और इनबॉक्स से जाके डिलीट कर दिया। अब आपका एडमिन बाय डिफॉल्ट उस डिलीटेड मेल बॉक्स को कहीं से भी रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले, रिकवर नहीं कर सकते सर। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही ऑप्शन आपके पास आता है, लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट कर दो। जब आप लिटिगेशन होल्ड को कॉन्फ़िगर कर लोगे ना, जब आप लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट कर दोगे तो आप जो भी यूजर अपनी तरफ से डेटा को डिलीट करेगा, जो भी यूजर अपनी तरफ से डेटा को डिलीट करेगा, सेंड आइटम को डिलीट किया, इनबॉक्स को डिलीट किया, ठीक है, स्पैम से डिलीट, वट एवर लोकेशन कहीं से भी इसने डेटा को डिलीट कर दिया, लिटिगेशन होल्ड की हेल्प से वी आर इजिली एबल टू रिवर्ट बैक द डिलीटेड डेटा। आप उस डेटा को रिवर्ट बैक कर सकते हैं, ठीक है ना। नो मैटर, यूजर तो फ्री है, टेंशन फ्री है कि मैंने तो डेटा डिलीट कर दिया और मुझे कोई हेडेक नहीं है, लेकिन बैकएंड में उसका लिटिगेशन होल्ड है और ये बात यूजर को भी नहीं पता थी, समझ गया समझ। है ना। ये होता तो है, सिनेरियो होता है। ऐसी सिचुएशन में वी ऑलवेज गो विद दैट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर सर। ओके, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, आपने लिटिगेशन को होल्ड को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, so you activated litigation hold, tell me about the procedure, tell me about the way
how we can revert back the data. अब वो litigation hold एक्टिवेट करने के बाद यूजर ने 3 से 4 मेल को डिलीट कर दिया. Can you please tell me about how we can revert back? तो उस केस में अपने पास एक डेडिकेटेड पोर्टल होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट पर्व्यू बोलते हैं. माइक्रोसॉफ्ट पर्व्यू के केस में वी आर इजीली एबल टू गेट एन एक्सेस ऑफ आवर डिलीटेड कन्वर्सेशन. जो डेटा डिलीट हो चुका है उसको आप रिवर्ट बैक करा सकते हैं. सर वो We are going एक्सचेंज से भी तो जाता है, एक्सचेंज के अंदर भी तो ऑप्शन होता है वो मेल डिलीटेड डेटा को मेल no बॉक्स रिकॉल किया no जाता है. no. Deleted mailbox are deleted user deleted data from OneDrive SharePoint are totally different. जिसमें रिटेंशन पॉलिसी आती है. ठीक है. लिटिगेशन होल्ड आपको 2 ऑप्शन सिर्फ देता है. अगर आपने इसको टर्न ऑन कर दिया और सेव कर दिया तो क्लार इस टेलनेट यूजर का डेटा परमानेंट के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए ये डेटा को सेव करके रखेगा. इज दैट क्लियर? क्लियर सर. अगर आपने इसमें 90 डेज डिसाइड कर लिया तो अब आपका यूजर अगर डेटा डिलीट किया, मेल्स को डिलीट किया आज की डेट में, तो आपके पास अगले 90 डेज ही रहेंगे. 91 डेज पे आप डेटा को रिवर्ट बैक नहीं कर पाओगे. ओके. So in case client या interviewer आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, tell me about the default validity of our litigation hold to hold the data, hold the deleted data, है ना? तो आप उसमें सिंपल सा बोलेंगे अनलिमिटेड, इनफाइनाइट. ठीक है ना? इनफाइनाइट टाइम तक हम अपने डेटा को रिवर्ट बैक करा सकते हैं. ठीक है. लेकिन in the same users properties we are able to see you have to give the days. ठीक है. आपको डेज देना पड़ेगा कि ठीक है हम 30 डेज के लिए या 90 डेज के लिए या 20 डेज के लिए या 25 डेज के लिए वी आर गोइंग टू पुट इट. सो ऐसी सिचुएशन में यू ऑलवेज गो विद दैट कि आप एक टाइम ड्यूरेशन दे दो और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आपने डेटा को रिवर्ट बैक कर लिया देन गुड. अगर आप डेटा को रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहे हैं दैट इट मींस दैट यू हैव टू चेक इट. ठीक है ना? उसके बाद आपको so this is the point that you need to manage. Are we good with the concept of litigation hold? Yes sir. Can we proceed for next? Yes sir. Okay. Next, the another important point for us in the users properties, एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे related to मेल के अंदर ही एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज. मतलब अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका यूजर की जो प्रॉपर्टीज है ना वी विल एबल टू ओपन फ्रॉम द एक्सचेंज एडमिन सेंटर. तो और जब आप एक्सचेंज एडमिन सेंटर से उसको ओपन करोगे ना सो इन दिस सिचुएशन इट विल गिव यू द सेपरेट ऑप्शन. वो मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज हो जाएगी. अभी हम यूजर की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं. अगर हम इसको एक्सचेंज एडमिन से एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं then it will give us option of exchange that we are going to discuss. अभी हम इसी पे पार्ट पे रहेंगे. और लास्ट है वन ड्राइव. हर एक लाइसेंस के साथ वन ड्राइव का स्पेस रहता है. वन ड्राइव इज एप्लीकेबल टू स्टोर योर पर्सनल डेटा दैट हेल्प अस टू स्टोर योर यूजर्स प्रोफाइल डेटा, शेयर पॉइंट डेटा. आप चाहो तो अपने टीम्स का भी कन्वर्सेशन इस पे रख सकते हैं. इज दैट करेक्ट? यस सर. ऑल इन वन. ऑल इन वन मतलब कि हाँ मेल बॉक्स छोड़ करके, मेल बॉक्स के अलावा आप कोई सा भी डेटा रख सकते हैं. मेल बॉक्स ऑथराइज नहीं है कि हम इसमें डेटा रख सकें. ठीक है. मेल बॉक्स का डेटा वन ड्राइव में नहीं स्टोर किया जा सकता है. सिर्फ शेयर पॉइंट का, वन ड्राइव का और या फिर आप अपने यूजर की प्रोफाइल या फिर आप अपना पर्सनल डेटा फाइल फोल्डर वगैरह होगा, आईएसओ इमेज हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, वो सारा चीज आप रख सकते हैं. ऑल डन प्लीज. सर इसमें रेस्ट्रिक्शंस जो लगाने थे कि ये टाइप फाइल्स ना करो, वो यहीं से लगेंगे कहीं और से? शेयर पॉइंट से एडिट शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर से एक शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर से एडिट व्यू परमिट यूजर स्पेसिफिक यूजर, किसी भी स्पेसिफिक यूजर को अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, कौन से डोमेन की पॉलिसी लगानी है, वो सब हमारा शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर. ये हमें डिफॉल्ट लाइसेंस में मिली है 1024 GB यानी 1 टेराबाइट स्टोरेज स्पेस जो मिला है इस लाइसेंस के हिसाब से वन ड्राइव का स्पेस. Exactly, as per the license that you provided. Data retention 30 days your default policy, storage still continue.
ठीक है सर, ये तो मैनेज का यहाँ भी ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं रिटेंशन चेंज और स्टोरेज। हाँ बिल्कुल, डेटा रिटेंशन पॉलिसी और स्टोरेज को भी अगर आपको लगता है कि ये तो डिफॉल्ट है ना, ये आपका डिफॉल्ट है। मैक्सिमम आप कितना तक खींच सकते हैं, इसमें कितना तक जा सकता है? 5 टीबी का डेटा मिलता है हमें। 5 ठीक है, टेराबाइट 5 टेराबाइट फॉर E5, क्योंकि E5 लाइसेंस से तो आप 5 टीबी तक डेटा को स्टोर कर सकते वो हैं। तो पता है, ठीक है। और डिफॉल्ट 1 टीबी का है मतलब, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। 2 टीबी देना है, 3 टीबी देना है, 5 टीबी देना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द यूजर्स प्रॉपर्टीज। हमने मोस्टली यूजर्स की प्रॉपर्टीज को चेक किया। अभी अपने पास है, हाँ जी, सर एक बार मैं रिपीट करवाऊंगा, मेल में जो लास्ट बीच वाली प्रॉपर्टी थी ना, वो वाली। विजुअल। ये एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज है ये। Okay. So when we open it, it will redirect us on the page of Exchange Admin Center. एक्सचेंज So you, पोर्टल, अच्छा ठीक है, है ना? इसलिए आपने नहीं बताया कि जब हम एक्सचेंज पोर्टल करेंगे तब हाँ, होगा। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सचेंज पे यूजर्स नहीं रहता, एक्सचेंज पे मेल बॉक्सेस होते हैं। मैं समझ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्लियर है। है ना? हाँ, डन। ठीक है, और डू प्रैक्टिस हम लोग मंडे कनेक्ट करेंगे और जी डिस्कस सर। करेंगे अबाउट द कॉन्टेक्ट्स, बल्क यूजर क्रिएशन और टेम्पलेट के थ्रू यूजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, श्योर श्योर सर, मैं सारा नोट कर लूंगा, अभी हाँ जी, जितनी भी प्लीज क्लास होगी। नोटबुक बना लेना नोट्स, प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑलराइट सो सर, मच। थैंक यू।